Dear students, this is Imran Kazmi, and we are going to start our next lecture, lecture 29 of Programming Fundamentals. In the previous lecture, we have started working on structure. We have discussed introduction to structure, members and structure variables, structure definition, and how to access the members of structure. While in this lecture, we will discuss some programming code, some programming examples of structures. Here is a simple program. Write a program to enter a record of two implies using structure and then display both records. Here we have defined a structure named as imply and the member data, imply ID, name, city, and salary. So this is the member data of the structure named as imply, and in the main we have created two structure variables E1 and E2 for imply. So imply is our structure and we have created two variables of imply E1 and E2. So as already stated, whenever you need to access the member data of the structure, you need to use the variable reference along with the dot operator to access the member data. For example, enter data of first imply. We are going to use it for two implies, E1 and E2. So for first imply, when you need to enter data, always use E1 as a reference to access the member data of this structure. So when name has to enter, always use E1 dot name. So E1 is the variable of the imply, and dot is the operator that would be used to access the member data of this structure. So anytime when you need member data of the structure, you cannot access it without these reference variables. So first time when you need to enter the name of the imply 1, you will use E1 dot name. Similarly, to enter the city of the first imply, E1 dot city. Similarly, to enter the imply ID for imply 1, E1 dot imply ID, and the salary for imply 1, E1 dot salary. So for second imply, continuity with the same line, enter data of second imply. So we have set E2 for second imply. To enter the data of second imply, always use E2 variable to access the member data. So to enter the name of the second imply, E2 dot name gets के साथ आप यूज करेंगे. Similarly, imply 2 का city enter करने के लिए E2 dot city. Similarly, imply code जो है वो input करने के लिए E2 dot imply ID. और अगर सैलरी जो है वो आपने एंटर करनी है तो E2 डॉट सैलरी. तो याद रखें कि ये चारों आपके जो मेंबर डाटा है, इसको इन वेरिएबल के रेफरेंस के बगैर आप स्ट्रक्चर के मेंबर डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते. तो E2 डॉट सैलरी, तो अभी हमने एम्प्लॉय 1 को E1 के रेफरेंस से जो है वो स्टोर किया है,
और एम्प्लॉय 2 को E2 का जो रेफरेंस है उससे स्टोर किया। तो E1 का ब्लॉक सेपरेट है 56 बाइट्स का, और E2 का ब्लॉक सेपरेट है 56 बाइट्स का। तो जब भी E1 का रेफरेंस देंगे तो E1 वाला जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एक्सेस करेगा, और जब आप E2 का रेफरेंस देंगे तो E2 वाले जो मेंबर डाटा है वो एक्सेस किया जाएगा। तो अगर आप ये रिकॉर्ड जो है वो कंफर्म करना चाहते हैं कि जी वो सेपरेटली स्टोर हुआ है या नहीं हुआ, तो आप इसको डिस्प्ले करवा लें। जैसे आप फर्स्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएं तो E1 डॉट नेम पुट्स करें, सिमिलरली E1 डॉट सिटी, E1 डॉट एम्प्लॉय ID, E1 डॉट सैलरी। और अगर एम्प्लॉय 2 का या सेकंड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो आप डिस्प्ले करवाना चाहें तो आप उसको भी पुट्स करवाएं E2 डॉट नेम, E2 डॉट सिटी, और सिमिलरली E2 डॉट एम्प्लॉय ID एंड E2 डॉट सैलरी। तो अगर एम्प्लॉय 1 का रिकॉर्ड आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो E1 डॉट उसका एट्रीब्यूट आप देंगे, और अगर एम्प्लॉय 2 का आप रिकॉर्ड शो करवाना चाहते हैं या कोई एक एट्रीब्यूट आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या एक्सेस करना चाहते हैं तो E2 डॉट दैट एट्रीब्यूट वुड बी रिक्वायर्ड। तो याद रखें कि एम्प्लॉय जो स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, इस स्ट्रक्चर के जितना भी मेंबर डाटा है वो इन मेंबर आपके जो वेरिएबल्स हैं E1 और E2, इनके रेफरेंस के बगैर आप इस डाटा को ना तो इनपुट कर सकते हैं, ना यूज़ कर सकते हैं, ना डिस्प्ले कर सकते हैं, या इन अदर वर्ड आप इस मेंबर डाटा को इन वेरिएबल्स के बगैर एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं जी। सबसे पहले आपने फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए एंटर नेम, तो यहाँ पे आपने गेट्स किया था E1 डॉट नेम, तो E1 डॉट नेम के लिए आपने जो वैल्यू एंटर की दैट इज़ इमरान, और फिर E1 डॉट सिटी के लिए जो आपने वैल्यू एंटर की दैट इज़ सरगोदा। फिर E1 डॉट एम्प्लॉय ID और E1 डॉट सैलरी के लिए जो वैल्यूज़ आपने एंटर की दैट आर 744 और सैलरी 12,000। और सिमिलरली जब सेकंड एम्प्लॉय के लिए आपने E2 का रेफरेंस दिया तो E2 डॉट नेम की वैल्यू आपने एंटर की असद, E2 डॉट सिटी की वैल्यू एंटर की लाहौर, E2 डॉट एम्प्लॉय ID आपने एंटर किया 123, और E2 डॉट सैलरी जो एंटर की दैट इज़ 14,000। तो अगर जो है वो आप एम्प्लॉय 1 का रिकॉर्ड डिस्प्ले करते हैं तो E1 के साथ जो आपने वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाई आप ये चेक कर सकते हैं कि ये रिकॉर्ड वही है जो आपने यहाँ पे E1 के लिए एंटर किया है। और सिमिलरली अगर E2 का आप जो है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएंगे तो ये वैल्यूज़ वही हैं जो आपने E2 में एंटर की हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि E1 और E2 का साथ जो है वो ओवरलैप नहीं करेंगी वैल्यूज़, उनके लिए सेपरेट बाइट्स जो है वो रिज़र्व होंगे। E1 के लिए ब्लॉक ऑफ बाइट्स जो है वो सेपरेट रिज़र्व होगा, और E2 के लिए ब्लॉक ऑफ बाइट्स जो है वो सेपरेट रिज़र्व होगा। लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन। Create a structure named student that has member data, name, roll number and marks as members. Assume appropriate type and size of members. Data type इसकी आप खुद सेट करेंगे. Write a program using structure to read and display the data entered by the user. तो आपने बेसिकली एक स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिसमें मेंबर डाटा होगा आपके पास, नेम, रोल नंबर और मार्क्स, और इसकी डाटा टाइप और साइज़ जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी से सेट करना है। और प्रोग्राम आपने ये बनाना है कि ये जो डाटा है, ये जो रिकॉर्ड होगा, इसको रीड किया जाए और डिस्प्ले किया जाए। कितने स्टूडेंट्स के लिए ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, 2 स्टूडेंट के लिए करना चाहें, 4 के लिए करना चाहें, 3 के लिए करना चाहें, उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो आपने खुद सेट करना है। तो चेक करते हैं जी इसको कैसे अटैम्प्ट किया है। मैंने एक जो है वो इसकी अटैम्प्ट की है, इसको देखते हैं। 2 स्टूडेंट्स के लिए मैंने इसे किया है।
For example, here is your structure named as student. Struct कीवर्ड आप यूज करेंगे. रोल नंबर ऑफ टाइप इंट. नेम करेक्टर अरे लेंगे, 30 साइज सेट करेंगे इसका. और सिटी ये भी करेक्टर अरे लेंगे और 20 साइज सेट करेंगे. और मार्क्स के लिए, क्योंकि मार्क्स की वैल्यू डेसिमल में आ सकती है, तो उसके लिए आप जो टाइप सेट करेंगे दैट में बी फ्लोट. आपकी मर्ज़ी, आप इंटीजर रखना चाहें, फ्लोट रखना चाहें, इट्स अप टू यू. ये हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया और इसको दो स्टूडेंट्स के लिए, ये मेन में देखें, स्टूडेंट जो आपकी स्ट्रक्चर है इसके लिए दो वेरिएबल्स रखे हैं, S1 और S2. इसका मतलब यह है कि दो स्टूडेंट के लिए, S1 के लिए भी ये मेंबर डाटा यूज़ होगा और S2 के लिए भी ये मेंबर डाटा जो है वो यूज़ होगा. तो सबसे पहले हम एक स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट स्टूडेंट के लिए एंट्रीज करते हैं, इनपुट करते हैं डाटा. तो नेम एंटर करने के लिए गेट्स S1 डॉट नेम, सिमिलरली S1 डॉट सिटी, S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट मार्क्स. तो जब भी आप फर्स्ट स्टूडेंट के लिए करेंगे तो आपका जो रेफरेंस यूज़ होगा वो सब के लिए S1 यूज़ होगा, क्योंकि S1 के लिए ब्लॉक ऑफ बाइट्स जो है वो अलहदा रिजर्व हुए हैं और S2 के लिए जो ब्लॉक ऑफ बाइट्स हैं वो अलहदा हैं. तो इसलिए आपने जब S1 का रेफरेंस देना है तो इसका मतलब है कि आप फर्स्ट स्टूडेंट के लिए जो है वो जो आपके मेंबर डाटा है उसको एक्सेस कर रहे हैं. और सिमिलरली जब आपने सेकंड स्टूडेंट का मेंबर डाटा एक्सेस करना है या इनपुट करना है तो उसके लिए आपने S2 जो है वो जो आपने वेरिएबल रखा है वो यूज़ करना है. तो यहाँ पे S2 डॉट नेम, S2 डॉट सिटी, S2 डॉट रोल नंबर, S2 डॉट मार्क्स. तो यहाँ पे आपने ये सारा काम जो है जो इनपुट किया फर्स्ट स्टूडेंट के लिए, ये S1 का रेफरेंस दिया और यहाँ पे जो है वो आपने S2 का रेफरेंस जो है वो थ्रू आउट यूज़ किया. तो अगर आप जो है वो इनपुट करने के बाद उन्हें डिस्प्ले करवाना चाहें, फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है तो S1 डॉट नेम पुट्स करवाएंगे, S1 डॉट सिटी पुट कराएंगे. सिमिलरली रोल नंबर अगर डिस्प्ले करवाना है तो S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट मार्क्स. तो यहाँ पे बात जो समझने की है वो ये है कि ये वाले जो मेंबर डाटा है ये आप बग़ैर S1 और S2 जो भी आपने वेरिएबल क्रिएट किए हैं उनके रेफरेंस के बग़ैर आप स्ट्रक्चर का मेंबर डाटा एक्सेस नहीं कर सकते. तो यहाँ पे जब हम इनपुट करवा रहे थे तब भी हमने रेफरेंस दिया S1 और S2, और जब आपने डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए भी आपने इस स्ट्रक्चर का कोई भी वेरिएबल आपने डिस्प्ले करवाना है तो आपने रेफरेंस ज़रूर बताना है कि आप S1 के लिए उसे जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं या S2 के लिए. तो पहले हमने ये सारी वैल्यूज़ S1 के लिए डिस्प्ले करवाई और फिर हमने ये सारी चीज़ें जो है वो S2 के लिए, जैसे सेकंड स्टूडेंट के लिए S2 डॉट नेम, S2 डॉट सिटी और सिमिलरली S2 डॉट रोल नंबर और S2 डॉट मार्क्स. तो जब भी दो हमने स्टूडेंट्स के लिए लिया तो फर्स्ट स्टूडेंट के लिए S1 है तो S1 के लिए एंट्रीज करेंगे और सेकंड स्टूडेंट के लिए S2 है तो S2 के लिए एंट्रीज करेंगे. तो इसका रिजल्ट चेक करें. तो S1 डॉट नेम जब हमने इनपुट किया तो उसकी वैल्यू हमने अली रखी, S1 डॉट सिटी के लिए सरगोदा, S1 डॉट रोल नंबर 63, S1 डॉट मार्क्स 1238. और सिमिलरली सेकंड स्टूडेंट के लिए S2 डॉट नेम जो इनपुट किया है वो आमिर किया है और S2 डॉट सिटी जो एंटर किया है वो काड़ा किया है और S2 डॉट रोल नंबर डेफिनेटली यहाँ पे हमने 55 उसकी वैल्यू दी है और S2 डॉट मार्क्स जो इनपुट किए हैं वो 1133 की हैं. तो अब S1 का रिकॉर्ड सेपरेट है और S2 का रिकॉर्ड जो है वो सेपरेट है. तो अगर हम फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएं तो ये देखें S1 का जो रिकॉर्ड है ये वही एंट्रीज़ हैं, अली यहाँ पे सेम सिटी और उसका रोल नंबर और उसके मार्क्स, ये S1 का रिकॉर्ड है और ये आपके सामने S2 का रिकॉर्ड. तो याद रखें
कि हमें जितने भी वेरिएबल्स के लिए ये रिक्वायर्ड होगा, सिमिलरली अगर हमारे पास एक और वेरिएबल S3 है, 3 स्टूडेंट्स के लिए हम ये करना चाह रहे हैं, तो S1 के लिए एंट्रीज अलहदा होंगी, S2 के लिए जो है वो उसका ब्लॉक ऑफ बाइट्स अलहदा होगा और उसकी एंट्रीज अलहदा होंगी, और सिमिलरली S3 के लिए जो है उसका ब्लॉक ऑफ बाइट्स अलहदा होगा और उसका एंट्रीज जो है वो सेपरेट होंगी। तो आप जितने भी आप स्टूडेंट्स के लिए करना चाहें, यहाँ पे उसके वेरिएबल आप एक्सटेंड कर दें। तो अगर यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे तीसरा वेरिएबल भी आप ले सकते हैं, S3 यहाँ पे ले लें, और यही सारा काम आप जो आपने S1 के लिए किया है, S2 के लिए किया, आप S3 के लिए भी कर सकते हैं। तो 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी आप जो है वो इस तरीके से एंटर कर सकते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स का भी रिकॉर्ड, n स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी आप एंटर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। होपफुली यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर एक से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो आप अगर आपके पास हों तो फिर उसको किस तरह से जो है वो मैनेज किया जाता है, या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को किस तरह से किया जाता है। तो अगर 2 या 3 वेरिएबल्स हों तो उसके लिए तो आप सेपरेटली ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके वेरिएबल्स जो है वो 100 हों, 200 हों या एन हो, तो उसके लिए आप फिर इस तरीके से S1 S2 या E1 E2 जो है वो नहीं ले सकते। तो देन यू विल हैव टू गो फॉर द रेस। तो इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम जो है वो अरे ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करेंगे, जिसमें हम जो है ये मसला हल करेंगे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं और हम ये देख रहे हैं कि जी वो वैल्यूज़ अगर एक या दो मेंबर डाटा के लिए हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर जो है वो हमारी वैल्यूज़ जो है वो जैसे यहाँ पे S1 और S2 के लिए तो हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 10-20 हो तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा, उसके लिए हमें अरे और लूप जो है वो यूज़ करनी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो अरे ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर का डाटा है, मेंबर डाटा, इसको हम जो है वो लूप लगा के किस तरह से फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।